turned to fear in a matter of seconds. Crowds had gathered for the funeral of a child and members of Hezbollah when hundreds of mourners were surprised by an explosion. Hundreds of communication devices burst simultaneously across Lebanon, killing several, injuring hundreds, among them civilians. Yes, there are indeed many injuries, and today's incidents involve larger and bigger devices that cause more damage. Therefore, the data today might indicate an increase. We have observed a significant number of injuries, although many are mild. However, those who sustain serious injuries are severely affected, which raises our concern about a potential rise in the number of deaths. It's the second wave of coordinated attacks on communication devices in the country in 2 days. I did not expect what happened today. Things are repeating all over again. We had some devices here that we believed were 100% safe, but out of caution, we removed them from the store because we got worried. Our enemy is a traitor. May God give us peace. That's all we can say. The Lebanese group did not comment on Wednesday's attacks, but blamed Israel for detonating hundreds of pagers the day before. Hezbollah officials called this a new phase in regional tensions and warned of reprisal. This aggression inevitably has its own punishment. It has its own retribution. This punishment will come, God willing. Doctors say hundreds of patients are in critical condition with deep explosion-related wounds, and now more are on the way. Since yesterday, it's been really a very busy and stressful time for us. So we received more than 150 patients in a record time of less than 3 hours. Most of them have injuries to their face, including the eyes, the nose, and the facial bones, in addition to injuries to the hands and fingers, and to the waist and lower abdomen. United in shock and grief, and fearful of an all-out war with Israel, people in Beirut and Sidon chose solidarity, showing up in numbers to donate blood for the injured. I think that donating blood is the least we can do under these circumstances, and God heal all the injured. There are fears medical facilities could also be targeted. Lebanese soldiers have found explosives and carried out controlled explosions, including one found in an ambulance outside a hospital in Beirut. Medical staff say they regularly use pagers and walkie-talkies to perform their duties. Traumatized Lebanese citizens are desperately seeking answers. A second wave of attacks on communication devices has left them uncertain about what might happen. They're waiting to hear from Hezbollah's leader Hassan Nasrallah, who is expected to speak on Thursday. Ali Hashim, Al Jazeera, Tyre, Southern Lebanon. नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। अभी आपने जो ये क्लिप देखी, कैसी लगी आपको? थी ना मज़ेदार? इससे ज़्यादा मज़ेदार बात ये है कि इज़राइल की जो मोसाद है, उसने लेबनान का वो हाल मचा दिया है, हिजबुल्लाहों का वो हाल मचा दिया है, जो ये इतने सालों से हिजबुल्लाह दूसरे देशों पर, ख़ासतौर से इज़राइल को डराने धमकाने की हरकतें करते थे, दूसरों को डराते थे, आतंक फैलाते थे। आज वो खुद आतंक के साए में जीने को मजबूर हो गए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है, कल आपने मेरा YouTube वीडियो देखा था जिस पर मैंने बात की थी। कल ही मोसाद ने लगभग 3000 पेजर हिजबुल्लाह के उड़ा दिए थे। वो कैसे उड़ाए, क्यों उड़ाए और उसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हुई, ये एक डिफरेंट मैटर है। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कल 3000 पेजर में विस्फोट हुए थे और आज उनके जो वॉकी टॉकी हैं, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं जैसे सोलर पैनल वगैरह, इन सब में भी विस्फोट हुए। हालांकि इस घटना से मरने वालों की जो संख्या है, तादाद है, वो इतनी नहीं बढ़ी है जितना कि बम गिराने से लोग बाग मरते हैं। लेकिन बम गिरने से लोगों के मरने की नंबर्स ज़्यादा होते हैं, डर दहशत कम होती है। मोसाद ने ये ऐसा काम किया है कि इसमें मरने वालों की संख्या तो कम है, लेकिन जो डर का माहौल, जो दूसरों को डराते थे, उनको इतना बुरी तरीके से डरा दिया है
कि वो डर के मारे अपने मोबाइल वगैरह सब दूर दूर रख दिए। ऐसी भी खबर है कि जो मोबाइल सेलर्स हैं, जो नए फ़ोन बेचते हैं, मोबाइल फ़ोन बेचते हैं, उन्होंने अपने शॉप में केवल मोबाइल के जो बॉक्सेस होते हैं गत्ते वाले उनको रखा हुआ है और बाकी सारे मोबाइल स्टोर गोडाउन में रख दिए हैं। उसकी वजह यह है कि अब उन लोगों को इतना खौफ बैठ गया है, उन्हें समझ में नहीं आता कि किस मोबाइल में कब विस्फोट हो जाए और कौन सा मोबाइल ठीक है और कौन सा नहीं। तो इस इतना डर फैलाने का जो ये मोसाद की एक्टिविटी है, ये माइंड ब्लोइंग है। माइंड ब्लोइंग के साथ एक और बात है कि ये बिल्कुल नए तरीके की लड़ाई है, बिल्कुल नया तरीका इसमें यूज़ किया है मोसाद ने, और मोसाद ने वो टेक्नोलॉजी यूज़ की है कि अभी तक उसका पता नहीं चल पा रहा कि इसमें विस्फोटक लगाया गया वॉकी टॉकी वगैरह में या सोलर पैनल्स में या पेजर में, या फिर कोई डिवाइस था, क्या था, किसने लगाया, कैसे हुआ, ये अभी तक किसी को रीज़न समझ में नहीं आ रहा है। जब ये पेजर वाली घटना होनी थी कल, उससे पहले ऐसी खबरें हैं राइटर्स पर कि जो इज़राइल के रक्षा मंत्री हैं उन्होंने अमेरिका के जो रक्षा सचिव हैं उनको सेक्रेटरी को फ़ोन करके बता दिया था पहले ही कि हम एक ऑपरेशन करने जा रहे हैं इस बारे में। लेकिन ऑपरेशन में क्या है, कैसे होगा, उसमें क्या करने जा रहा है इज़राइल या मोसाद, ये सब कुछ जानकारी उनके साथ शेयर नहीं की गई थी। सिर्फ ये इन्फॉर्म किया था कि हम कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने ये पेजर वाला एक बटन दबाया और एक बटन में 3000 जो हिजबुल्लाह के लड़ाके थे उनके पेजर में विस्फोट कर दिया। हालांकि इसमें मरने वालों की संख्या लगभग 30-40 ही है और जो घायल हैं वो करीब 2500 से ज़्यादा लोग हैं। तो मरे कम, लेकिन दहशत, अब दहशत का सोचिए। अब उनको इतनी दहशत हो गई है कि अगर उन्होंने मान लो टीवी चलाने के लिए सोचा चलो कार्टून देखते हैं, मूवी देखते हैं, लेकिन जैसे ही रिमोट का बटन दबाया पता चला विस्फोट। मोबाइल, किसी भी जने के मोबाइल पे बेल बजी, उठाएंगे ही नहीं फ़ोन, क्योंकि अगर फ़ोन पिक करने के लिए जैसे ही ग्रीन बटन दबाया वैसे ही विस्फोट। इलेक्ट्रिक जो वॉशिंग मशीन होती है उसमें कपड़े धोने के लिए जैसे कपड़े डालने के बाद मशीन का बटन घुमाया, विस्फोट। अब विस्फोट किस में हो सकता है, किस किस चीज़ में हो सकता है, कितना बड़ा हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये सारी प्लानिंग मोसाद और इज़राइल की अभी भी बरकरार है। अच्छा, कहने में ये भी आ रहा है, सुनने में ऐसा भी आ रहा है कि जो इज़राइल का ये कहना है कि ये हम जो लड़ाई का फेस होते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, तो अभी तक जो हम लड़ रहे थे, ट्रेडिशनल वॉर लड़ रहे थे, वो फेज़ 1 था। अब हमने अपना फेज़ 2 स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, एक और बात कि जो ये पेजर ख़रीदे गए थे लेबनान में हिजबुल्लाह द्वारा, ये लगभग 5-6 महीने पहले ख़रीदे गए थे और तभी जो ये वॉकी टॉकी हैं ये भी उसी टाइम पर ख़रीदे गए थे। यानी कि 6 महीने पहले ख़रीदी हुई चीज़ जो आज हिजबुल्लाह के पास है, तो अब उसमें अब जाके तो कोई इज़राइल वाले कुछ डिवाइस लगाएंगे नहीं, कोई विस्फोटक लगाएंगे नहीं। यानी कि जो भी काम किया गया था वो 6 महीने पहले किया गया था हिजबुल्लाह को इन सामान की डिलीवरी होने से पहले। यानी कि मोसाद ने एक हिजबुल्लाह के नाम से एक एफडी कर दी थी अपने अकाउंट्स में कि हमें एक फ़िक्स डेट पर इन लोगों से अपना बदला लेना है या इनको डराना है। अब जो ये हिजबुल्लाह के अगेंस्ट इज़राइल के स्टेप्स हैं, इससे ना केवल लेबनान में डर फैला हुआ है, ईरान में भी डर फैला हुआ है और जो यमन के हुतीज़ हैं वो भी घबराए हुए हैं। क्योंकि जो इज़राइल का बुरा करने की सोचेगा, ज़रूरी नहीं है कि वो आज बुरा करे तो इज़राइल कल ही उससे बदला ले ले। इज़राइल हर की जो मोसाद है वो हर जगह पर अवेलेबल है, हर जगह उसकी पहुंच है, उसकी पहुंच का कोई ठिकाना नहीं है। कुछ महीनों सालों पहले मोसाद ने ईरान में जाके लैंड करके, हेलीकॉप्टर अपना लैंड करा के, और जो ईरान के इक्विपमेंट्स हैं न्यूक्लियर बम बनाने वाले, वो सब वहाँ से उठा के और हेलीकॉप्टर से वापस ये इज़राइल ले आए थे। तो मोसाद इस टाइप की एजेंसी है जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है वर्ल्ड में। जब हुतीज़ या ईरान या लेबनान इज़राइल के ऊपर अटैक करते हैं, हमास ने जो अटैक किया था पिछले साल 7 अक्टूबर को, तभी भी ऐसा कहा जा रहा था कि मोसाद की जो इंटेलिजेंस है वो फेल हो गई। हो सकता है वो फेल हो गई, मैं मान सकता हूँ कि वो फेल हो गई, लेकिन फेल होने के बाद उनका जो रिटेलिएट था, उसके ऊपर जो रिएक्शन था वो कितना दमदार है आप ये देखिए।
हिजबुल्ला, ईरान, जितने भी इस टाइप के पाकिस्तान वगैरह कंट्रीज़ हैं, ये सब एक ही आवाज़ लगाते हैं, जिहाद जिहाद जिहाद, अल्लाह अकबर। लेकिन ये लोग स्कूल कॉलेज नहीं जाते। अगर ये स्कूल कॉलेज जाते, पढ़ाई करते, तो इन्हें समझ में आता कि कैसे टेक्नोलॉजी को हैंडल किया जा सकता है और कैसे लड़ा जा सकता है। अब जो ये एक्टिविटी इजराइल ने की है, इसका तोड़ क्या है? अभी तक यही नहीं पता चल रहा है जब उन लोगों को कि ये हो कैसे रहा है, इसके अंदर था क्या, कैसे विस्फोट हो रहे हैं। तो जो ये डर है, इसका कोई सॉल्यूशन अभी तक उनके पास है नहीं। तो अब इस तरीके से ईरान से लेके लेबनान तक, यहाँ तक कि इजिप्ट भी थोड़ा बोलता है, वो भी थोड़ा मतलब सतर्क हो गया होगा। और हूतीस तो खैर हैं ही इजराइल के निशाने पर। तो जो भी इजराइल से पंगा लेगा उसका हश्र बुरा होने वाला है। लेकिन मैं कहूँगा हेड्स ऑफ टू मोसाद एंड इजराइल। क्या टेक्नोलॉजी है, क्या आपका जो ये ऑपरेशन है, वंडरफुल। दुनिया में कोई नहीं सोच सकता था। हर कोई ये सोचता है कि गोली से मरेगा दुश्मन, बम से मरेगा, रॉकेट मिसाइल वगैरह इनसे मरेगा। लेकिन उन्होंने बिना किसी को मारे हुए जो आतंकवादी, हिजबुल्ला वगैरह टाइप के जितने भी आतंकवादी हैं, हमास वगैरह, ये आतंकवादी दूसरों के दिलों में डर पैदा करते थे, आज इनके दिल में डर पैदा हो रखा है। और वो भी इतना डर कि इन्होंने अपने जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं सबको छूना बंद कर दिया है। अब इजराइल ने जब ये कहा है कि ये हम सेकंड फेज़ में एंटर कर रहे हैं और अभी तो ये शुरुआत है, अभी आगे और क्या होगा, तो अभी क्या क्या और फटने वाला है और क्या क्या फटेगा, अभी इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये खबर तो उन्होंने दी नहीं है कि हम किस किस में विस्फोट करेंगे। लेकिन अब एक बात तो पक्की है, डर अच्छा है। अच्छा, एक आपने वो मिस्टर इंडिया पिक्चर देखी होगी या उसका डायलॉग आपको याद होगा, उसमें अमरीश पुरी जी थे, वो कहते थे मुकम्बो खुश हुआ। तो इसी तरीके से मोसाद भी उनके डर को देख के कहता होगा मोसाद खुश हुआ। तो ये डर की कार्रवाई आगे लगातार जारी रहेगी जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा। हो सकता है कि और कुछ भी अपडेट्स आ जाएँ और नई नई चीज़ों में विस्फोट होना शुरू हो चुके हों। तो जो भी नई अपडेट होगी मैं आपको शेयर करता रहूँगा आपके साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।